Good noon to everyone. Welcome to the world of biology. Today we will start the chapter number 2, part 1, biological classification. As far as classification is concerned, what do you mean by the classification? As somehow we have taught in the previous chapter, classification means grouping of living organisms. Living organisms on the basis of their similarities and dissimilarities. The first biological classification was proposed by Aristotle. He was the man, it is also known as father of biology. Initially, he grouped the animals in two groups, animals with red blood and animals with non-red blood. So, dear students, this is very important chapter in which we will discuss about the different types of classification. Especially our emphasis will be on five kingdom theory, or you can say five kingdom classification. It was proposed by Whitaker. So have a look on the PPTs. So the process of grouping living organisms into convenient categories based on simple characters is known as biological classification. As I have already told you, Aristotle was the first person who classified the animals into groups. Animals with red blood and animals with non-red blood. So you can see there are many animals that has red blood and there are many animals that have non-red blood. You can see the Carolus Linnaeus here. Linnaeus is known as the father of modern biological classification or the father of taxonomy. As far as Aristotle is concerned, he was the first person who made efforts earliest to classify scientifically. He used morphological characters to classify the plants into three groups. So you can see these are the three important categories of the plants which were classified by Aristotle: trees, shrubs, and herbs. You can see the figure here: herb, shrub, and this is the tree. Now, two kingdom classification. What is two kingdom classification? It was proposed by Carolus Linnaeus. He categorized and classified the living organism on the basis of nutrition and mobility. So, the basis of classification of Linnaeus was nutrition and the mobility. The living organisms were classified into two groups: kingdom plantae. Most of the plants were autotrophic in nature and non-motile. It means mobility was absent. In the plant kingdom Animalia, uh, these are the heterotrophic group of animals. Plants, plantae, autotrophs, cell wall is present and do not move. These are the important features which were used by the Linnaeus. And the animals, these are the heterotrophs, no cell wall and can move. So plantae and Animalia, this is the two kingdom classification and it was proposed by Linnaeus in 1758. Now next, later found two kingdom classification was not sufficient because in that prokaryotes and eukaryotes were grouped together. This is the wrong classification. How can we put the prokaryotes with eukaryotes? Heterotrophs and autotrophs were grouped in together. This is also wrong. No difference between unicellular and multicellular organism, and simple organisms were placed along with the higher organism. So this classification was not at all appropriate. So the next attempt was taken by R.H. Whitaker, who proposed the five kingdom classification. And you can see main criteria for classification was complexity of cell structure, either the organism is prokaryote or eukaryote,
body organization either unicellular or multicellular. Mode of nutrition, this is important again, autotrophic, heterotrophic, and some sort of holozoic in nature. Lifestyle, producers, consumers, and decomposers. Producers are the autotrophs, consumers are the heterotrophs, similarly decomposers. Phylogenetic relationship. So these were the important criteria for classification in five kingdom classification. So in the next one, five kingdom classification. देखिए इसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, ये पांच ग्रुप है साहब. फाइव यानी पांच, किंगडम मीन्स जगत. इसके अंदर आप देख सकते हो किंगडम मोनेरा, इसमें बैक्टीरिया को रखा जाता है. सो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन मोनेरा. इसमें रखेंगे जो मतलब जिसमें सिंगल सेल हो प्रोकैरियोटिक हो. प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड मैनी मोर अदर. किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, इसमें जो फंजाई होती है इसको अपन फफूंद या कवक भी कहते हैं, उसको रखा जाता है. मोस्ट ऑफ दोज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक इन नेचर. सम फंजाई आर यूनिसेलुलर जैसे यीस्ट. किंगडम प्लांटी, इसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स को रखते हैं. किंगडम एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है. तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं. यहाँ पर देखो ये जो क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको समझो. सबसे नीचे नीचे रख रखा किंगडम मोनेरा, ये सबसे सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनकी जो सेल या कोशिका होती है उसमें प्रोकैरियोटिक नेचर के होता है. और उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका होगी, जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली रहेगी, यूनिसेलुलर. और ऊपर वाले जो तीन ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये मल्टी सेलुलर है बट यूकैरियोटिक है. सो किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया. सबसे पहले आप आ जाओ किंगडम मोनेरा. सबसे पहली बात आती है किंगडम मोनेरा का मतलब क्या है. मोनेरा का मतलब होता है मीन्स सिंगल और सोलिटरी, मतलब सिंगल सिंगल सेल्स रहेगी साहब. सो मोनेरा इज ए किंगडम दैट कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसमें जो जीव होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं, विद ए प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सच एज बैक्टीरिया. और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मतलब जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है वो डेवलप्ड नहीं होता, विकसित नहीं होता है. हैबिटेट्स, ये ओमनी प्रेजेंट टाइप के होते हैं, मे बी फाउंड इन नॉर्मल एंड एक्सट्रीम कंडीशन, कहीं पे भी पाए जाते हैं वर्ल्ड में, हर हैबिटेट में, हर आवास में पाए जाते हैं. दीज आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर एंड यूनिसेलुलर, ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होंगे, मतलब इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा. और यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल के बने होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं. बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द नेचर. बैक्टीरिया जो है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नंबर में. इट मे बी फ्री लिविंग, हो सकता है ये फ्री लिविंग रहते हो स्वतंत्र रूप से. सिम्बायोटिक, हो सकता है ये दो के साथ में रिलेशनशिप में रहते हो जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता हो. और पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब होता है, हो सकता है कि ये किसी पे डिपेंडेंट रहते हो. सो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इन फोर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर शेप. शेप के बेस पर बैक्टीरिया को अपन चार ग्रुप में डिवाइड करते हैं. जो स्फेरिकल या गोलाकार होते हैं उनको कोकस कहते हैं, और प्लूरल होता है इसका कोकाई. जो रॉड शेप होते हैं बेसिलस, इसको बेसिलाई कहते हैं. विब्रियम, ये कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इनको विब्रियो कहते हैं. ये प्लूरल विब्रियो है, और विब्रियम जो है कोमा है. और स्पाइरिलम, ये स्पाइरल होता है, मतलब सर्पिलाकार होता है. और स्पाइरिला जो है इसका एग्जाम्पल है. ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सुधार लेना. SPIRILLA. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स. अगर ऑटोट्रॉपिक नेचर के अगर बैक्टीरिया है तो वो या तो फोटोसिंथेसिस करेंगे या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे. और बाकी जो बैक्टीरिया वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब विषमपोषी होते हैं. किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड्स फॉलोइंग. किंगडम मोनेरा में हम निम्न चीजों को सम्मिलित करते हैं. पहला था आर्की बैक्टीरिया. ये एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, वर्ल्ड में सबसे पहले यही डेवलप हुए थे. और यू बैक्टीरिया, इनको साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक कह सकते हैं. माइकोप्लाज्मा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. इनमें आपने पढ़ा था
9th क्लास में, इसके चारों तरफ सेल वॉल एब्सेंट होती है, अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। ये यहाँ पर बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये देखो कोकाई गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं, राउंड शेप स्पेरिकल। बेसिलाई ये रोड शेप होते हैं। स्पाइरिला ये इधर देखो ये सांप की तरह होते हैं टेढ़े मेढ़े से, है ना। और विब्रियो ये कोमा शेप के होते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया किसे कहेंगे? So archaebacteria are a group of microorganisms considered to be an ancient form of life that evolved separately from bacteria and blue-green algae. मतलब इसमें क्या हुआ, ये सबसे पुराने बैक्टीरिया थे, उनको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर रहना मुश्किल होता है आम जीवों का, वहाँ पे ये रह सकते हैं। जैसे इट इज फाउंड इन वेरी हार्श मीन्स एक्सट्रीम हैबिटेट्स, बड़ी खतरनाक सिचुएशन, जैसे सॉल्टी एरिया, जैसे मान लो समुद्र के पानी में ये मिल जाते हैं साहब, बहुत ज़्यादा अगर सॉल्टी यानी खारा पानी है उसमें मिल जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के झरने, वहाँ मिल जाते हैं। मार्शी एरिया दलदली भूमि होती है साहब, कीचड़ होता है, वहाँ मिलते हैं। स्नो कवर्ड एरिया जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ मिलते हैं। द सेल वॉल ऑफ दीज बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरिया एंड मैक्स देम रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम हैबिटेट्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है, जो इसको क्या बनाते हैं बताओ, रेजिस्टेंट बनाते हैं। उसके बाद में आता है हेलोफाइल्स। ये हेलो मीन्स सॉल्टी एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया, एग्जाम्पल हेलो बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफाइल्स ये हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। और मेथेनोजेंस ये मार्शी एरिया में मिलते हैं जहाँ मीथेन गैस निकलती है, मेथेनोबैक्टीरियम ब्रायंटी। The methanogen bacteria found in the gut of ruminant animals like cows, buffaloes, which produce methane biogas. So methanogen bacteria ऐसे होते हैं जो गाय के, भैंस के, जो जुगाली करने वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं ruminant। जुगाली करने वाले जानवरों के आपके आंत में मिलते हैं, गट यानी आंत में मिलते हैं, काउज गाय में, भैंस में, बफेलो है ना, इसके अंदर मिलते हैं। ये एक आर्की बैक्टीरिया का यहाँ फोटो दे रखा है, देखो। हालांकि ये फिगर आपके बुक में नहीं है। इसकी ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड ये इसका जो डीएनए है, न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म, पाइलस है, कैप्सूल है, और ये फ्लैजिलम है इसमें। यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, एज कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ ए मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस, प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं विद डीएनए इन ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। इनमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जिसमें डीएनए रहते हैं। एंड हैव पेप्टिडोग्लाइकेन ऑन सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट। और इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन बायोकेमिकल होता है। दीज आर दी ट्रू बैक्टीरिया। इनको ट्रू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स? बताओ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट हैज रिजिड सेल वॉल। इनमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। इट इज मोटाइल देन फ्लैजिला प्रेजेंट। अगर मान लो फ्लैजिला है तो ये गतिशील होते हैं, मोटाइल मीन्स गतिशील। उसके बाद में so cyanobacteria are photosynthetic in nature which contains chlorophyll as similar to green plants। इसमें अपन क्या देखेंगे, अगर ये साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी, ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, क्लोरोफिल इनमें मिलता है जैसे ग्रीन प्लांट्स में होता है। वैसे साइनोबैक्टीरिया में भी यूनिसेलुलर हो सकता है, ये यूनिसेलुलर हो, कॉलोनियल हो सकता है, कॉलोनीज में बैक्टीरिया मिलते हैं, और फिलामेंटस मींस एक लंबी चेन में मिलते हैं। The colonies are surrounded by gelatinous sheath। इसकी जो कॉलोनी होती है उसके चारों तरफ जिलेटिनस शीट होती है, देखना एकदम चिकनी चिकनी सी लेयर परत होती है जो इसको बचाती है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है। इट फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। और वाटर बॉडीज जो होती है आपके जो तालाब है, झील है, उसके अंदर एल्गल ब्लूम क्रिएट करती है, पॉल्यूशन को क्रिएट करती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स में फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। और इनमें से कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। जैसे ये जो ब्लू पर्पल कलर की सेल दिख रही है यहाँ पर, ये वाली, ये आपकी हेटेरोसिस्ट है। ऐसे ये हेटेरोसिस्ट है, यहाँ पे एग्जांपल है इसका एनाबीना एंड नॉस्टॉक। नाउ व्हाट डू मीन बाय द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया? इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्रेट्स, nitrites, ammonia and release the energy in the form of ATP and help in the recycling of nutrients। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं
एग्जाम्पल स्यूडोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात अपन करते हैं तो डीकम्पोजर्स हम पढ़ेंगे सर, जो डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अबंडेंट मतलब बहुतायत में, बहुत ज्यादा। मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स, और इनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो डीकम्पोजर नेचर के होते हैं। सब किस नेचर के होते हैं? डीकम्पोजर नेचर के होते हैं। दे हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड यूज टू मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, और इससे कर्ड बनाते हैं, दूध, अपने दूध से दही बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स इससे प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम रूट्स, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर जड़ों में ये गांठें बनाते हैं और वहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। सम आर पैथोजेनिक, कुछ जो होते हैं पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, जैसे कोलेरा, टीबी। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वो बाइनरी फ्यूजन होता है, दो में डिवाइड हो जाएंगे। स्पोर फॉर्मेशन इन अनफेवरेबल कंडीशंस एंड बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्राइमरी टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब आता है हमारा माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? ये भी मोनेरा ग्रुप में रखा जाता है। माइकोप्लाज्मा, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं साहब, प्लूरल माइकोप्लाज्मास और माइकोप्लाज्मेटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा जो है ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रह सकते हैं। Most of the mycoplasmas are pathogenic in nature in plants and animals. इनसे बीमारियां फैलती। They are naturally resistant to antibiotics that target cell wall synthesis. मतलब ये ऐसी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल सिंथेसिस को टारगेट करती है, उसके लिए नेचुरली रेजिस्टेंट है। कारण क्या? सेल वॉल ही नहीं है। लाइक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमने 5 किंगडम थ्योरी में पहला जो किंगडम था मोनेरा, वो अपन ने पढ़ लिया है। तो आप लोग कोशिश करना इसके अंदर और अच्छे से अच्छा पढ़ने की, इसके एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ना। कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।